अब पूरी प्रोडक्ट ऑफरिंग समझाइए ना। ओके, प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है? ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग बेसिकली हमारे दो है। एक, व्हेन यू टॉक अबाउट द सोशल मीडिया, बिकॉज व्हेन सोशल मीडिया, most of the companies today, they wanted to basically leverage the communication which is happening on all the social media. वो कंपनी छोटी हो या वो बड़ी हो, as the volume scales, as the employee count scale, as the geography scale, it become more challenging because आज के डेट में कस्टमर जो है, they are not only just watching the brand or the product, they are basically validating your brand or your statement when you are giving it. जब तुम रियल टाइम पे दे रहे हो तो तुमसे बात करते करते तुम्हारे सामने सामने तुम्हारे गूगल रिव्यूज पढ़ रहा है, तुम्हारे फेसबुक रिव्यूज पढ़ रहा है, तुम्हारे प्ले स्टोर रिव्यूज पढ़ रहा है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ अ ब्रांड और अ कंपनी मैटर्स बिकॉज ऑल दोस थिंग व्हाइल यू आर सेइंग, वो एक बार वैलिडेशन भी कर रहा होता है प्लस वेरिफिकेशन भी कर रहा होता है। दोनों चीज उसका कस्टमर के माइंड में चल रहा होता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने वो चीजें मैनेज नहीं करके रखी हैं, या तो मैनेज करने का तरीका होता है या तो टीम बैठाओ, वो कंटिन्यूअसली कीप ऑन मॉनिटरिंग एवरीथिंग ऑन द मैनुअल बेसिस, या आप टूल्स इंप्लीमेंट करते हो जो आपके लिए ऑटोमेट होकर के काम करते हैं। अब जैसे फेसबुक पे आपको एक टैब खोलना है, इंस्टाग्राम पे अलग है, लिंक्डइन पे अलग है, यूट्यूब अलग है, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस प्लेटफॉर्म, दे डोंट talk to each other. But for company, all these platforms are one because they're one, their product is one, their brand is one, and that is where your brand का narrative होता है, which you are trying to build it across, is getting formalized. But are you shaping it? That's why we say, yeah, are you shaping it or you're just monitoring it? कि how you can basically proactively manage all your communication across different platforms. अब वो सेम चीज न्यूज में भी होता है कि how exactly your brand reputation is getting built up on the news, and how you're basically keeping a tab of your communications and a competitor communication. तो nutshell में बात करूँ तो what we are basically building up is a social intelligence engine plus a customer experience management platform. तो आई गेस लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको, आप के कैरियर पे, कि हाउ यू स्टार्टेड एज, क्योंकि एज फाउंडर को जानना भी जरूरी होता है। तो अपना थोड़ा कैरियर की जर्नी में हम लोग को ना पीछे लेके जाओ आप, कि आपने क्या किया है अभी तक और क्यों हम्म। फोकस पे कैसे आप आए। सो आई गेस कैरियर स्पैन मोर देन 28 ईयर्स, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स नाउ। 28 years तो नहीं बोलूंगा, हाँ, मतलब 2000 you passed out from the college, and since then, so interesting question. So let me rethink about it. So it started in 2000, rather, when I passed out from DMT Calcutta, and did one shift, and after that have been working in the consulting space for more than 10 years, largely focusing on the projects related to the port, shipping, shipbuilding, shipyard, then gradually moving from the shipping and maritime, I moved to the railway. So we did a lot of the projects around railway, railway infrastructure, then moved to the further warehousing, ICT, container terminal, all those things, and then moved to the airport side also. So fundamentally, if you ask me, the journey which started as the pure play maritime and port expert expanded to almost hardcore infrastructure and logistics space consultant in the span of 10 years. And that's what my forte was. Largely, I was working as a commercial and a finance expert, understanding the technicals and translating those technical understanding to the financial number. Should we continue English or Hindi? जैसा मन करे। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी थी कंसल्टिंग की, जब स्टार्ट हुई थी। ऑल्दो मैरिटाइम जब ज्वाइन किया था तो आई थिंक जो हमारे टाइम पे एक्सपोजर था वो सिर्फ ये था कि शिपिंग में ही आपको काम करना है, शिपिंग में ही यू हैव टू बिल्ड अप द करियर। तो दैट्स व्हाट आई थिंक जो 4 साल हमने निकाले थे 96 से 2000, वी वर ऑलवेज envisaging about कि यार how we are able to build up our entire career in shipping. But as I
land on ship, I realized what is the critical component a ship particularly contributes to the shipping economy, to the nation economy, and to the overall global trade. And that's where my interest moved towards more on the commercial side rather than the technical side. So a lot of my friends still say I haven't sailed much, but I think the learnings which is today available in very, very varied forms and shape that helped me actually build up my career over the period of time. And yes, that's what I think almost for 10 years when I was working in the consulting from there, I saw there was a lot of the upsurge around the lot of the people, although there was a deep down, there was always what do you call it, seed over there in the mind, यार कुछ अपना करना है, something which has to be something which makes you get up every day without a boss push or without any individual pushing you to get out, come to the office and all. So I think वो एक motivation हमेशा से था कि अपना खुद का कुछ करना है, and that's where I keep on helping out a lot of the people, lot of the companies almost on the pro bono basis. जब I was building a financial model for them, building up the bankable report for the infrastructure project, more or less on the pro bono basis because जब आप consulting में होते हो तो very difficult to get a earning income from there. But I think I was honing up my skills in the different sectors. आप private freight terminal की बात करो, आप शिप बिल्डिंग यार्ड की बात करो, आप पोर्ट टर्मिनल की बात करो, जेएनपीटी का फर्स्ट टर्मिनल से लेकर के फोर्थ टर्मिनल का फाइनेंशियल मॉडल की बात हो, अडानी मुंद्रा के पोर्ट की बात हो, या विजिंगम हो गया, टुटिकोरिन हो गया, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया पे मैंने काम किया है. एंड ऑलमोस्ट मोर देन 40 to 50 माइनर पोर्ट्स पे मैंने काम किया हुआ था, मोस्टली ऑन द कमर्शियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी साइड. तो ये थी मतलब पूरी कंसल्टिंग की जर्नी. बट हैविंग सेड दैट, आफ्टर वर्किंग फॉर 10 years in consulting, the startup bug has bitten, and I think that was the reason when I moved out from KPMG and joined a company called Pristine Logistics, which they were basically building up the private freight terminal, first private freight terminal in India, where I joined them as a financial consultant, but I think things did not work out well. So I moved out from there and started my first venture by the name of Verolog. The entire objective was how we can actually leverage the entire understandings, how we can leverage the understanding of the financials and commercials and implement a large scale infrastructure project. तो वहां से शुरू हुआ था. But then when I started my company Verolog, objective was how we can actually build up a seamless on time delivery commitment. वेल उस समय तो लास्ट माइल डिलीवरी और ये 30 मिनट डिलीवरी वगैरह उतना कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इट वाज मोर ऑन 24 आवर्स में हाउ यू कैन हेल्प द कंपनी टू प्लान आउट देयर एंटायर सप्लाई चेन. सो वी वर ट्राइंग टू सर्विस द क्लाइंट लाइक Maruti. Then a lot of the startup which were coming up at that point of time in 2012, where Snapdeal was my customer, Flipkart, not Flipkart, Snapdeal was my customer, Fashion and You was a customer. Then we were servicing couple of other. Videocon was my customer, so we were helping them to manage their last mile delivery and manage their entire COD cash flow cycle. So that was one of the problem statement जो हम ले करके build कर रहे थे, क्योंकि उस समय एक चीज समझ में आ रही थी, क्योंकि जितने भी incumbent प्लेयर थे, चाहे वो ब्लू डार्ट हो, Aramax हो, ये सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स को उनका COD, आई थिंक इट्स इज कैश ऑन डिलीवरी जो हम काफी कॉमनली यूज करते हैं ई कॉमर्स मार्केट में, was a very necessary evil. And Blue Dart, Aramax, DTDC, they used to return the money after delivering to the customer almost 15 to 21 days के बाद, which was a huge cash flow stuck in the entire supply chain post the sale had happened. तो हमारे जैसे प्लेयर्स की जरूरत आ रही थी, where people were like to associate with us, where we can help them not only reduce their cash flow realization cycle, जो debtor cycle बोलते थे, but also help them to get a churn of the entire product. Customer को समझ में आया तो it is a return also. So all those things were there. The business was picking up. We were doing a decent revenue at that point of time. 2012 से 2014 was a completely bootstrap company. वो करते करते, but I think as I mentioned about COD, so एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, which I would like to share with the folks also.
तो उस समय मारुति के चेयरमैन होते थे मिस्टर आरसी भार्गव। तो उन्होंने ऐसे पूछा था, एक हमारी एक मीटिंग थी, उसमें पूछा था, यार हमें तो एक बात बताओ कि ये CO2 तो इसका कैश ऑन डिलीवरी, अब गांधी पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है, तो कल को अगर कोई लेके भाग जाएगा तो कैसे मैनेज करोगे? ऑल्दो आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम द आंसर, बट इंटरनली आई नो कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज somebody can take away, because almost we were collecting close to 2 lakh to 3 lakh, and then later on it become almost like 5 to 10 lakh on daily basis, which we were collecting from the customer after delivering the product. And anybody and everybody, after having so much of cash, and then there was a banking cash flow cycle कि यार ये कहानी आपके फ्राइडे को होता है, सैटरडे हाफ डे होता है, संडे आपका अवेलेबल नहीं, बट डिलीवरी इज हैपनिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, व्हाट हैपेंड अबाउट द कैश? So we got a hit. We got a unfortunate hit of a COD loss. One of the employee ran away with a decent amount of capital. But I think that basically reminds me of what Mr. Archie Bhargav told me at that point of time. And I think that was a pivoting point where I said, yeah, this business is not sustainable. Then I spoke to a couple of big guys, Delivery, Ecom Express. You either write off, you take the hit, or you move ahead. But we, being a bootstrap company, we were not in a position to accept the losses, and then we moved ahead from there. And then I think the interesting part happened when I was closing the Verilog. I got a call from one of my school friend. He was starting up a company called Shuttle. So Shuttle was starting up, and I really liked the idea of actually building up the business on the mobility side, where I was very much fascinated. Ola, Uber ने जैसे काम किया था, we were trying to replicate the same thing on the similar lines on the buses. How we can actually build something similar, a technology product, where we can not only help the people to track the buses but also monitor their pickup point, bus कितनी दूर है, where exactly you are standing on the road, where exactly you are, like जो आज की डेट में हमको दिखता है उबर की ऐप में या ओला की ऐप में या इवन रैपिडो की ऐप में, इट बेसिकली ट्रैक योर लोकेशन एंड गाइड यू टू द पिकअप लोकेशन। ये हमने 2015 में बनाया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर अ वेरी बिग हिट। आई थिंक I think everybody knows about Shuttle. We got a significant amount of funding from Sequoia, Lightspeed, Times Internet. And over the period of 4 years, we raised close to $90 million. And I think 4 साल वहाँ पे काम करते करते I built up the entire B2C vertical. Then I built up the B2B part of the Shuttle also. And we were doing a decent revenue over there. So with that learning, when I was actually thinking about the bus mobility is a huge market and India being a bus country, अगर मैं स्टेटिस्टिक की बात करूं, if anybody knows, इंडिया में ऑलमोस्ट आपके रेलवे नेटवर्क इज जस्ट 1 लाख किलोमीटर, वेल रोड नेटवर्क इज 5 लाख किलोमीटर। ये आपके 2020 की बात है, एंड ऑलमोस्ट इफ यू गो टू द स्मॉल टाउन और द लोअर ट्रंक सिटी, buses still act as a lifeline over there. People wait. मतलब ये अगर मैं बात करूँ 2020 की, one of my what do you call it team members who was there, he has came from NIT Silchar, वो मुझे बताता था कि सर हम अगर गुवाहाटी से बस मिस कर देते हैं 9 बजे 10 बजे वाली बस, अगर मिस कर देते हैं देन वी हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स फॉर नेक्स्ट बस टू कम नेक्स्ट डे। आज हम जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उस समय मतलब ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूँ आपकी मिड 2015 या 2020 की भी, तब तक भी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, where people are actually waiting for the next mode of commute, and ट्रेन आपके पहुंच नहीं सकती है, एयरलाइन कनेक्टिविटी है नहीं। अगर मैं बात करूं तो आपका टोटल ट्रैवल पॉपुलेशन में एयरलाइन जस्ट कंट्रीब्यूट टू 7% ऑफ योर पॉपुलेशन, and roughly around 20% of the travelers move by train, and remaining 72% of the population still move by the buses on road. That is where the landscape of the bus mobility is there in the Indian market. But I think जब मैंने अपना second venture start किया था, which was a GoGo bus, it's a long distance bus mobility, something similar to जो FlixBus कर रहा है Germany में, now FlixBus is there in Indian market also. And that's when we were starting, but I think unfortunately COVID happens, and then we became almost like a no-brainer because the mobility was the last sector was anybody looking to invest, and I think that's where we got into the negative spiral loop. Although we were trying to survive by building up the product on the backend side,
हाउ वी कैन एक्चुअली हेल्प आउट कि कंपनीज के बंदों को, मतलब बस ऑपरेटर को, जो आज भी पेन पेपर पे, अगर आप देखोगे बहुत सी बस टिकटिंग जो होती है वो आपकी पेन पेपर पे आज भी चल रही है। ऑल्दो टिकटिंग साइट पे रेड बस है, अभी बस है, ये सिर्फ टिकटिंग साइट पे हेल्प करते हैं। बट अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, आज के में टेक्नोलॉजी का इतना इनोवेशन हो चुका है, if you realize without a seamless backend it's very difficult to manage the entire डे टू डे कैश फ्लो साइकिल। तो वो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, काफी हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए थे। हम ऑलमोस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में काम करते थे। एट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर क्लोज टू 800 बसेस हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती थी डेली। दे वर डूइंग क्लोज टू 900 ट्रिप्स ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, बट मोस्टली ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट साइड। बट long story short, COVID was a big dampener and we almost closed that venture in late 2022. But coming to the point with Pratik asked कि कैसे हम डेटा के प्लेटफॉर्म की तरफ मूव हुए थे, तो एक चीज बहुत कॉमन थी which I realized from the very beginning. So I think first exposure of my data came in the consulting time where we used to actually keep a track of each and every shipping moment. So एक example देता हूँ, तो I worked in a company called Drury. If anybody knows about it, Drury is a shipping consulting firm. Globally, Clarkson and Drury, they are the UK-based consulting firm. They are the two biggest consulting firm in globally. And अगर वर्ल्ड बैंक को या एडब्ल्यू को या किसी भी मल्टीलैटरल बैंक को कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है मैरिटाइम सेक्टर में, दे गो टू देम बिकॉज दे आर द बिगेस्ट डेटा वेयर हाउस, जिसको आज की डेट में हम एआई के टर्म्स में बात करें तो डेटा लेक्स। So they are the data lake, and I have seen my first time in my life how important the data plays when it is structured and kept in a structured way where you can build the intelligence on top of it. But data start talking the language of pattern, prediction, understanding. You are able to find out the anomaly in the data. You are able to find out the data when you're analyzing your data from different perspective. Data give its own story. And with that learning when I had, and जब मैंने गोगो बस बंद किया तो we were just evaluating our entire career journey, एक चीज समझ में आई कि how exactly the data plays. But then over the period of my next 10 years in consulting in the startup space, I realized how critical the social media is playing in the brand building. Today, everybody want to build up a company, they want to build up a brand, but social media was one of the critical components with today's world. Like I said, it's a necessary evil. You cannot live without it. If it is there, you have to manage it. Today, you cannot go to the customer that saying that कि बस मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन बिलीव नहीं करता हूँ, I just wanted to sell your product to you. That do not happen because the customers today, whether it's a small startup customer or a big company, whether it's an employee, any employee want to join a company, they want to go and read the feedback of a particular company. Whether they go on the Glassdoor, चाहे वो ambition box पे जाएंगे, Indeed पे जाएंगे, Google search पे जाएंगे, तो what I'm saying is the review has become a critical component in your entire life of the any brand building, any company building. So whether you're selling a product at 10 rupees or whether you're selling a product at 10,000 rupees or 10 lakh rupees. Customer feedback and the customer feedback management is one of the critical components. And that was the idea which started building up when I was after GoGoBus in 2023. I was thinking about around how exactly we can build around the product, how exactly we can talk about it. Then we did a lot of the research around who all are the competitor. Is it actually a problem which is existing or is it just my understanding of my thought process? But when we go deeper into that, we realize how broken the system is. As you grow in the company, आज की डेट में हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया मतलब अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक यार डिजिटल मार्केटिंग को एक हायर कर लो, उस बंदे का काम है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेगा, पोस्ट पे कुछ कमेंट्स आएंगे, पोस्ट पे कुछ जवाब चले जाएंगे, एंड माई सोशल मीडिया सॉर्टेड। बट एक्चुअली में अगर हम सोच के देखें या कोई सीईओ है या जो ब्रांड ओनर है विच इज बेसिकली द सीएमओ और the investor who are putting the money in the company, for them the brand of a company is a much bigger value. Do you want to really put the effort in the hands of a fresher or a 2-year-old guy who understand a little bit about a digital marketing, who understand a little bit about the social media? Social media is not about just social media posting.
social media is such a powerful tool. If you are able to leverage it, if you are able to manage the communication, you can really, really build a very, very big brand. And that's why I say the statement which I talked about, you see over here, these are the statement of an international research organization. There are almost 5.42 billion social media users are there globally. And today, if you talk about the big companies, 90% of the leader feel that social data is very, very critical for their business strategy. I was reading another article yesterday. Today, the communication officer, the chief communication officer, they are playing an equivalent role as a company CFO, company CEO, because they are the custodians of the brand. They are actually making sure my brand is getting a visibility to the right audience. I am reaching out to the right audience so that ultimately my positive brand perception leads to the positive brand value. Obviously, when I say positive brand value, it will obviously result in the positive my brand sales. My revenue will start coming in. Today, nobody want to buy. मतलब I can put a question कि nobody want to buy a product from any company जिसके reviews खराब हैं, जिसके reviews पे कोई response नहीं है, या customers are not, या when the customers see the companies are not responding to the customer feedback or the grievances or the call, or just take standard reply, we have looked into that matter, allow us some time, we will come back to you. So that give a very, very negative feel or the confidence to any of the buyer. वो क्या होता है, established company भी अगर करेगी ये कोशिश तो वो नहीं कर पाती, because then they start, all those things start reflecting in your sale number, they start reflecting in your revenue number, they start reflecting in your stock price. If you are a listed company, then you have another level of complexity, because today every analyst, every individual who is observing you on all the digital platforms, they are analyzing each and every aspect of a company. For example के तौर पे, like last year, if somebody remember, जब भावेश and Kunal Kamra की लड़ाई हुई थी. Kunal Kamra, nobody knew about Kunal Kamra. But when Bhavesh got entangled with him on the Twitter, he has became, Bhavesh has made Kunal a very important character. There was no need of it. But उसका खामियाजा ये हुआ था कि there was their verbal altercation on the Twitter lead to the lot of backlashes from the investor community, lot of the backlashes from your what you call it, the sale community. उस समय उन्होंने अपना ओला स्कूटर लॉन्च किया था. मतलब वी स्पोक टू ऑलमोस्ट 20 प्लस ओला स्कूटर वेंडर्स इन गुड़गांव एंड आउटसाइड. दे से कि सर अभी तक कोई इतने सवाल नहीं पूछा था, और ऑटो ऑल ऑफ अ सडन एवरीबॉडी वाज मोर इंटरेस्टेड कि अच्छा इतर में आपने ये दिया है, आपके प्रोडक्ट में ये नहीं है, हीरो के प्रोडक्ट में ये आता है, आपके प्रोडक्ट में ये क्यों नहीं है. तो पीपल बिकम टू क्रिटिकल अबाउट ऑल दोज थिंग्स. तो कहने को एक वो ट्विटर का अल्टरकेशन शुरू हुआ था, बट उसका खामियाजा ग्राउंड पे दिखने लगा था, विच स्टार्टेड शोइंग देयर रिफ्लेक्शंस ऑन द सेल्स आल्सो, which started reflecting on their what you call it, your investors relations and your share price. So cut a long story short, this is what we wanted to set a base for. So what Pratik asked me about ki why exactly the data. So I think that's where we realize, and that's where we say the social is where a brand narrative forms. Are you shaping it or are you building it out? Was it a long story, Pratik? नहीं सर, लॉन्ग स्टोरी नहीं है। अब आई गेस आ जाते हैं कि क्यू फोकस एआई क्या है, और व्हाट डज क्यू फोकस एआई एज ए प्रोडक्ट क्या करता है, क्या हेल्प कर सकता है। Okay, that's जो interesting. So प्रेजेंटेशन let आप me, किए, yeah, और सिंप्लीफाई रखते हैं क्योंकि ऑडियंस हमारी मरीन इंजीनियर्स वाली ऑडियंस है, तो ऐसा ना हो कि उनका रॉकेट साइंस हो जाए उनके लिए। तो ठीक है. जितना आप तो मैं स्टूपिडिफाई कर सको इस हम लोग के लिए कि अ, उतना ठीक है, मैं आप। समझाता हूँ इसको. ठीक है. जहाँ पे कोई सवाल होता है, मतलब कि आई थिंक लेट मेक इट मोर एंगेजिंग, अदरवाइज व्हाट हैपन कि हम बात करते रहेंगे एंड विल कीप ऑन गोइंग ऑन द लॉन्गर टर्म अब बेसिस. चलिए, मेरी चार कंपनियां हैं, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। किसी की अपनी नहीं, चाहे अपनी अपनी क्यों बात करूं, मेरी, या मेरी मेरी क्यों कर रहा हूँ बार बार। एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ का है, एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका टर्नओवर हम्म. साल का 50 करोड़ है। अब क्यू फोकस एआई उसकी कैसे हेल्प कर सकता है? ओके.
इंटरेस्टिंग सवाल है। तो अगर और क्यू क्या, फोकस की, मैं स्टार्टअप हूँ, मेरी मेरे मेरे उधार में हूँ, जीरो रेवेन्यू कंपनी हूँ, क्या क्यूफोकस एआई का मेरे लिए कोई यूज है? ओके, ठीक है। तो बिल्कुल है, आई थिंक दोनों ही केस में यूज केस है। तो एक चीज होती है कि स्टार्टअप के केस में क्या होता है कि हम खुद ही ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, तो हम सुपरमैन ही मैन हम सब खुद बन रहे होते हैं। तो वी ट्राई टू कंजर्व कैश एंड दिस इज नो रॉन्ग इनटू इट। हम भी अगर बात करें तो आज की डेट में, मैं शुरू हुआ था टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी का मुझे टी भी नहीं आता था। इफ यू आस्क मी, मरीनर कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहा है, so it is all the gradual learning which had happened. So I think that thing is everywhere else. Coming to the point, you think वो 50 करोड़ की बात है या वो छोटी सी कंपनी की बात है, आज की डेट में कोई भी बंदा, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, दे ऑलवेज थिंक देयर कंपनी एज अ ब्रांड। अगर कल को मैं आज की, मतलब इसके एग्जांपल लेता हूँ, रियल एस्टेट की बात करूँ, आज की डेट लोग डीएलएफ में एक प्रीमियम देने की बात क्यों करते हैं, या एमसीएम की एक प्रीमियम देने की बात क्यों करते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि देयर इज अ ट्रस्ट एसोसिएटेड टू इट, देयर इज अ ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड, जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव किया है, बिल्ड किया है। और ये किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए जब वो छोटी है, जब उसके प्रोडक्ट अभी तक, मेरे को रियल एस्टेट की अपनी एक साइकिल होती है कि हाँ, पहला प्रोजेक्ट मेरे को लाइव आने में कम से कम 2-3 साल लगेगा। टिल दैट टाइम इट इज प्योरली द जो वर्बल स्टेटमेंट, जो पेपर पे जो आपके डॉक्यूमेंट है, बट इट बिकम मोर एंड मोर और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे मेरे जो कस्टमर्स हैं या मेरे जो कैसे कस्टमर्स हैं जो बाय कर रहे हैं, मैं उसको और कैसे एंगेज कर सकूं। एंड आई थिंक दैट इज वेयर ये सोशल मीडिया कम इन टू द प्ले। कि अब मैं हर जगह जाके पेपर में तो खैर खबर नहीं छापूंगा, क्योंकि अगर कोई छोटी कंपनी है, 50 करोड़ की भी मैं बात करूं, तो वो पेपर में तो खबर नहीं छपती है। बट हाँ, ये कि अपने वो डेली प्रोग्रेस, अपने अपडेट जो वो भेज रहे हैं, या कस्टमर ने, आपने कुछ पोस्ट किया एंड देन कस्टमर ने कोई क्वेरी डाली, देन हाउ क्विकली यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर रिस्पॉन्डिंग। एंड जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो प्राइवेट में नहीं होगा, वो रिस्पॉन्ड आपका पब्लिकली, अगर किसी ने पब्लिक फोरम में ट्विटर पे नहीं लिखा है या यूट्यूब के पोस्ट पे लिखा है या इंस्टाग्राम के पोस्ट पे आपको लिखा है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कंपनी से कि वो वहां पे जवाब दे। वो जो एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम डीएम पे ले जाकर के उसको ले जाएं, तो इट्स ओके, तो यू डोंट वांट टू पब्लिकली पब्लिशाइज एवरीथिंग, बट कहीं पे आपको कुछ चीजें पब्लिकली रखनी पड़ती है, ताकि जो और रीडर्स हैं जो पढ़ रहे हैं आपके बारे में, दे गेट अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, कि अच्छा नहीं, हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है, ये रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर है, दे बेसिकली सॉल्विंग द क्वेरी विद ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में हर चीज सही होती है, हर चीज गलत होती है, बट हाउ यू मैनेज, अगर आप उसको ओपन एंडेड छोड़ देते हो, तो देन इट बिकम मच मोर, आई वुड से, जैसे होता है ना कि आपने किसी भी चीज को छोड़ दिया हवा में, कि अच्छा आप तुम उसके बाद जो भी इंटरप्रिटेशन लेना चाहो लेते रहो, दैट गिव अ वेरी नॉग इंप्रेशन और नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट ब्रांड। कमिंग टू द स्टार्टअप जो स्टार्ट कर रहा है, उसके केस में भी होता है कि हमने उसके लिए भी बनाया हुआ है कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मॉनिटर करना है, आपने कुछ पोस्टिंग किया है, आई कैन हेल्प यू आउट विद अ वेरी वेरी नॉमिनल स्टार्टअप टोकन वाला कॉन्सेप्ट है, कि वेयर यू कैन यूज एज यू पे, ऐसे पे एज यू यूज, कि जितना आप यूज करोगे उसके हिसाब से। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टुडे, एवरी प्लेटफॉर्म, अगर आप फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ऑल दीज आर, मतलब इंडिविजुअल यूजर्स को फ्री मिलते हैं, बट अगर इस पे आप एनालिटिक्स की एक लेयर लगाना चाहते हैं, ऑल दोज बिकम अ प्राइसी कॉम्पोनेंट। तो ट्विटर चार्ज करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी टू गिव यू द एपीआई, वेयर जिसके ऊपर हम अपना एआई की लेयर लगा करके समझाते हैं लोगों को कि अच्छा ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट? यस प्रतीक। सर, तो अब जैसे क्वेश्चन है कि कई बार, जैसे मैं ये प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा था कि स्कूल ओनर से, हम्म। तो उनका एक क्वेश्चन था कि हमारा जो चैटर होता है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो लोग पेरेंट्स अपने व्हाट्सएप पे निकालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो वो सोशल पे तो लिख नहीं रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे निकाल लेते हैं। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने। आई थिंक ये
अगर ये वाली बात पूछोगे ना, अगर मैं उस स्कूल की जगह होगा ना प्रतीक, तो मैं उनको ये ऑप्शन दूंगा कि आप अपने पब्लिक पेजेस बनाइए। देखो आई थिंक कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है कि हम अपने पब्लिक पेजेस नहीं बनाएंगे तो फायदा है, और यही होता है कि चैटर होती है, मर्मर्स होती है, लोग फुस में बात कर रहे होते हैं। आपने कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है, लोग हर कोई जाकर ट्विटर पर नहीं लिखेगा। आपका अगर गूगल का पेज है, आपका यूट्यूब का पेज है, आपका इंस्टाग्राम, पहले आपको पब्लिक खोजती है। पहले वो गूगल करती है, वो खोजती है आप कहाँ पे अवेलेबल हो। अगर आपका कोई पेज नहीं है, तो देन पीपल गो एंड टॉक विद इन द ग्रुप। और व्हाट्सएप चैटर किसी के लिए भी, मैं किसी की भी बात करूँ, किसी के लिए भी, बिकॉज व्हाट्सएप इज वेरी इंक्रिप्टेड चैट। व्हाट्सएप किसी प्राइवेट प्लेस को एक्सेस नहीं देता है। तो अगर मैं स्कूल की जगह होऊंगा ना, तो मैं उनको बोलूंगा कि यार आप या तो गूगल पे अपना एक पेज बनाओ, या अपना जो भी फीडबैक्स है आप रेडिट पे जाओ, जहाँ पे भी एक फोरम होते हैं ना, जहाँ पे भी पब्लिक फोरम्स होती है, उन फोरम पे अपने आप को प्रेजेंट करो। आप कुछ डालो, कुछ लिखो, कुछ फीडबैक गैदर करवाओ। और जब वहां पे लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं, देन यू कैन एनालाइज, देन यू कैन बेसिकली बिल्ड अ लेयर ऑफ एनालिटिक्स ऑन टॉप ऑफ इट। बट अगर प्राइवेट चैट हो रही है, कमरे के अंदर कोई चैट कर रहा है, व्हाट्सएप चैट इज लाइक कमरे के अंदर लोग बातें कर रहे हैं, नो आउटसाइडर कैन रीड दैट। इसीलिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है किसी कंपनी के लिए, वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, कि आपको अपने पब्लिक पेजेस बनाने चाहिए। जैसे ही अगर हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, जैसे स्टार्टअप की तुमने बात करी, सबसे पहले हम क्यों बोलते हैं ट्विटर का पेज बनाओ, अपने इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, लिंक्डइन का पेज बनाओ, आप गूगल का पेज बनाओ। इट इज नॉट जस्ट टू हेल्प द कंपनी track you on the social media or the SEO के लिए, but it's also help your customer or the potential customer to ask or raise any grievances or questions. अगर आप वो दोगे ही नहीं, तो it's very difficult for anybody to actually take a corrective action. समझ रहे हो? I hope I answered the हाँ question, हाँ, Pratik. आई गॉट द आंसर। होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट समझा पाऊंगा लोगों को। तो आप कुछ इंसाइट दिखा सकते हैं हम लोग को आगे, क्यों फोकस की कि किस फॉर्म में मैं इंसाइट। मैं इंसाइट के तौर पे, ओके लेट मी शो यू द लाइव प्लेटफॉर्म, तुम लोग को मजा आएगा देखने में। Let me show you something. देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। दिस इज द लाइव प्लेटफॉर्म। लेट मी, माय स्क्रीन इज विजिबल। हाँ सर। जैसे इफ यू वांट टू गो, आई कैन, मैं शो करके दिखाता हूँ देखो। जैसे दिस इज माय लैंडिंग पेज, ऑल्दो यू कैन नॉट एंटर बियॉन्ड दिस, दिस इज माय वेबसाइट। दिस गिव यू स्नैपशॉट कि कैसा है पेज, क्या है, क्या हम करते हैं। व्हाट वी टॉक अबाउट इंस्टेंट सिग्नल, डिजिटल नॉइज, हम बेसिकली जो आपका सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट डिजिटल नॉइज। क्या हेडलाइंस हो सकती है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी वी आर बिल्डिंग अप बिहाइंड दैट, एंड कैसे काम करता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक लॉग इन करके। तो ये टेस्ट अकाउंट है, हमने मर्सिडीज बेंज के लिए बनाया था। स्क्रीन इज विजिबल। देखिए जैसे यहाँ पे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, रेडिट है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। आई शो यू अबाउट इंस्टाग्राम। अगर जैसे अभी हमने लास्ट अपडेट नहीं किया था, टेस्ट किया था उनको दिखाने के लिए, तो इनके क्या क्या पोस्ट हैं, कहाँ पे है, क्या उनका हैंडल है, कितने फॉलोअर्स है, कमेंट्स है, एंड दिस इज समथिंग वी आर हेल्पिंग देम टू एनालाइज। यहाँ पे डेटा नहीं है क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए डेटा नहीं आ रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज देयर। अब मैं अगर मैं जिससे बात करूँ, जो आई थिंक
सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है कि मेरा तो ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर का क्या चल रहा है। इन्होंने तीन कॉम्पिटिटर दिए थे, मर्सिडीज सिल्वर एरो, मर्सिडीज टीएमटी, एंड दीज आर लाइव अकाउंट, तो दीज आर डीलर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं वहां पे दिखा रहा था तुमको, अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, तो जैसे इनका टीएनटी मोटर्स है। इफ आई टेक यू टू द अदर लिंक, कैन यू सी माई द अदर स्क्रीन? हाँ सर। इंस्टाग्राम पेज दिख रहा है? हम्म। तो ये यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पेज पे इन्होंने लिखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें। ओके। तो यू कैन बेसिकली मैनेज योर प्लेटफॉर्म फ्रॉम हियर एंड गो टू मल्टीपल लोकेशन, एंड ईच एंड एवरी पोस्ट, ये पोस्ट बाय पोस्ट एनालिसिस है उनकी। ईच एंड एवरी पोस्ट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्या वो बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उनकी क्या अच्छी चीज है या कंपटीशन में क्या है बुरा है, एंड ऑल दो थिंग। सेम थिंग यू कैन डू फॉर अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए। जैसे एक एक पोस्ट के एनालिसिस में दिखाऊं, तो ये जैसे यहाँ पे है कि मेंशंस आ गए आपके, किस टाइम पे पोस्ट किया है, कौन कौन से यूजर्स हैं जो आपके पोस्ट पे एंगेज कर रहे हैं, किस टाइम पे आपने, आई थिंक ये जो मोस्टली जो परफॉर्मेंस मार्केटर काम करते हैं, किस टाइम पे तुम पोस्ट कर रहे हो ताकि आपका एंगेजमेंट सबसे ज्यादा हो सके। 3 बजे के 6 बजे के बीच में सबसे ज्यादा पोस्ट है, उनका एंगेजमेंट कितना है। एंड देन बेसिकली यू बिल्ड अराउंड इनसाइट्स अराउंड कौन आपके पॉजिटिव यूजर्स हैं, कौन आपके न्यूट्रल यूजर्स हैं। और आपको अगर जाके देखना है तो आप इनके पेज पे जाके देख सकते हो कि इसने क्या लिखा है, वो सारी चीजें। तो एवरीथिंग ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। उसके बाद मेरे को अगर एंगेजमेंट देखना हो, कि अगर मैं पूरा एंगेजमेंट देखना चाहता हूँ मेरे सारे पोस्ट का, कि उनका कैसा एंगेजमेंट रहा, उनका क्या सेंटिमेंट रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या एंगेजमेंट साइट्स है। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मोस्टली, अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट अगर किसी भी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे से बात करोगे तो वो बताएगा, अच्छा सर हम तो जाते हैं कीवर्ड सर्च करते हैं, वो पब्लिकली टूल्स अवेलेबल हैं, वहां से मैं जा करके, जो कि पेड टूल होते हैं, एंड वहां से जा करके हम कीवर्ड निकालते हैं, फिर अपना कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ कि वो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको यहीं पे ला करके आपको बता सकता हूँ कि कौन से आपके कमेंट्स इंटरेस्टिंग है कौन से नहीं है, एंड आपको मैं बता सकता हूँ उसके अराउंड आप कंटेंट बिल्ड करोगे तो हाउ यू कैन बिल्ड अ बेटर एंगेजमेंट अराउंड इट। तो कंपनी, कॉम्पिटिटर्स, एवरीथिंग ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म, दिस इज व्हाट वी डू। इसमें हमने न्यूज भी डाला हुआ है, तो ताकि न्यूज को भी हम ला के दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, एक और यहाँ पे भी लिंक नहीं है, तो आई कैन शो द लिंक ऑफ द न्यूज ऑल्सो। यस प्रतीक। आई गेस हाँ, काफी लोगों के लिए काफी टेक्निकल हो गया होगा, पर ऐसे मैं उतना यही बोलना चाहूंगा कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, सोशल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी ब्रांड को परसीव कैसे किया जाता है। एंड आई गेस क्यू फोकस इज डूइंग और ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब इन हेल्पिंग ब्रांड्स मेक राइट डिसीजन, कि पोस्ट क्या करें, कैसे करें, क्या करें, हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट। क्योंकि आपके पास वो इंटेलिजेंस ही नहीं रहेगा तो आप तो क्लूलेस होकर घूमते रहोगे, जितना मैं समझ पा रहा एब्सोल्युटली। हूँ। एब्सोल्युटली। एंड बड़ी बड़ी ब्रांड काफी पैसा खर्चा करती हैं जस्ट टू स्टे रिलेवेंट ऑन सोशल मीडिया। आई गेस विद दिस दे वुड गेट अ गुड टूल कि उसको चैनलाइज कर सकें अपनी एनर्जी को भी वो लोग। किसी का और कोई क्वेश्चन है सर के प्रोडक्ट पे? सो आई गेस आई विल ओपन टू एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये हार्डकोर टेक प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं और अमित सर दोनों ही थोड़ा टेक इंडस्ट्री से हैं, तो हम लोग तो समझ जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि राजीव सर बाकी वांट टू लोग। आस्क समथिंग। हाँ हाँ, एकदम पूछिए। यस सर, राजीव सर।
राजीव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई गेस नेटवर्क इशू है राजेश सर के end में। बट मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मैं सर, एंड आई वुड लाइक टू विश यू वेल ऑल द बेस्ट इन दिस जर्नी थैंक यू ऑफ गाइस। बिल्डिंग क्यू फोकस एआई। एंड मेरे हिसाब से तो इट्स कोई भी आइडिया निकालना सबसे आसान काम होता है, पर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन होता है। पहला तो करेज टू एग्जीक्यूट समथिंग इज डिजर्व एन अपलॉज इटसेल्फ, कि भाई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग धंधा चालू करना चाहते हैं पर कभी नहीं कर पाते। वो बस सोच रहे होते हैं, वो हमेशा अपनी जिंदगी में वो रिस्क एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे मेरे लाइफ में वो मीटर ही हट गया है, एंड गॉड हैज बिन काइंड कि वो मेरी बेट्स पे आई गेट गुड रिटर्न्स, बट देयर आर लॉट ऑफ बेट्स जहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। सो कई बार क्या होता है, देर आर इन्वेस्टमेंट वी कीप ऑन डूइंग बट विच गिव्स टू नॉट, बट आप अपनी कन्विक्शन के साथ फिर भी जाते रहते हो। So that takes a lot of courage for any entrepreneur. So we should applaud, and as a community, we should support those initiatives in best of our capabilities. मैं ये बोलता हूँ कि अपना घर गिरवी रख के किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। जितनी कर सके हम लोग को करनी चाहिए। So don't bet your house on someone, uh, but you can always bet your house on yourself. So if you want to start something, and QFocus.ai is a very interesting product for those of you who want to build brand using social media और social intelligence। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अमित सर का नंबर मुझसे ले लेना या कुछ किसी से भी ले लेना, ग्रुप में भी हैं एनसीआर वाले जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किए, टू कनेक्ट एंड मोर टू नो मोर अबाउट कि आपकी ब्रांड को या आपके स्टार्टअप को अमित सर कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आई गेस दैट ही विल गिव यू गाइड यू। एक 25 साल का एक्सपीरियंस है जहाँ पे काफी गाइडेंस मिल जाएगा आप लोग। मेरा तो यही मानना है कि देयर लॉट ऑफ entrepreneurial capability inside DMET community, mariners community, बट वो लाइट ऑफ द डे देख नहीं पाती क्योंकि वो करेज ही नहीं लोग बिल्ड कर पाते कि धंधा करना है। दे कीप डैबलिंग विथ आइडियाज फॉर ईयर्स टू ईयर्स, ईयर्स सालों साल लगा देते हैं, बट वो पैसा नहीं लगा पाते उस आइडिया। सो इसीलिए वी हैव अ लिमिटेड एंटरप्रेन्योर बकेट इन डीएमईटी। बहुत कम लोग हैं हर बैच में जो एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर। मेरे बैच में मैं अकेला हूँ, अमित सर के बैच में क्या पता एक दो हों, एंड हाँ, हर तीन बैच, चार है। हाँ तीन चार हैं। एंड अक्रॉस द बैचेस यही रेशियो है, दो तीन दो तीन। बट वी वांट टू इंक्रीज दैट, वी वांट टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स तो डे वन से जो रिस्क लेना चाहते हैं एंड वांट टू गो हाई। क्योंकि खुद एक तो राइट मोमेंट होता है, व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक रिस्क। एक एज के बाद तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाती है आपकी। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क एट दैट एज, it becomes too late. And DMETians are doing amazing, extraordinary work in different fields. So आप commit, and social intelligence something इसको सबको जरूरत पड़ती है. So I also take guidance from Amit sir regarding this, and even all my companies also take guidance from Q Focus AI, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड आप लोग को भी कोई गाइडेंस चाहिए क्योंकि सोशल परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर परसीव्ड एंड सोशल मीडिया। सो डीएमईटियंस 18,000 है आज टोटल, आज की डेट में अगर मिलाएं हम लोग मुंबई और कोलकाता कैंपस को। 14,000 ऑफ देम फॉलो अवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे लिए भी बहुत रेलेवेंस हो जाता है सोशल मीडिया का, कि उन 14,000 लोगों को एक रेलेवेंट कंटेंट दें, नहीं तो हम लोग को भी गाली ना पड़े उसे। So we also take decision based on, and we are very afraid to take any decision
कि भाई जनता का कुछ भला ही हो रहा हो। वैसा ना हो कि उनको लगे कि देर आर स्पॉन्सर्ड कंटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप आवर लाइट्स ऑन, बट वी हैव टू बैलेंस दैट एज वेल। एंड उस उन चीजों पे क्यू फोकस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आप अमित सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, किसी को भी नंबर चाहिए मैं दे दूंगा। एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग गुड। ऑन दैट नोट वी हैव स्टार्टेड सिटाडेल अगेन। हर वीक कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश रहेगी मेरी। अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ है और नहीं भी ला पाए तो भी वी विल कंटिन्यू इनफॉर्मल डिस्कशन इन सैटरडे। Rajiv sir has said कि on the other hand, some older guys can be a risk taker as now they fear nothing. They have nothing left to lose. Yes. They should always find young guys to partner. अगर आपके सारे, उनके लिए सबसे जरूरी पहला आंसर यही है। इफ यू आर वेरी ओल्ड डूइंग ए स्टार्टअप, तो एक एज एन इन्वेस्टर यू शुड हैव अ यंग फेलो एज अ पार्टनर विथ यू। तो ये तो ही हैज टू फाइंड सम, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको पता है, उनको उनकी पता है, नाम पता है मुझे। तो मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि वेयर यू फाइंड अ यंग पार्टनर, तो ही सर शुड फाइंड अ यंग पार्टनर टू सपोर्ट। तो उनको ये हो जाएगा। प्लेइंग सेफ से सर, वी कैन ऑलवेज प्ले सेफ बट वी कैन नॉट डू बिग इफ वी आर प्लेइंग सेफ इन लाइफ। प्लेइंग सेफ कर रहे हो तो चीफ इंजीनियर सेलिंग करो, जब तक कर सकते हो। सबसे अच्छा नौकरी वही है। उससे अच्छी नौकरी सुपरिटेंडेंट की भी नहीं है इफ यू वांट टू प्ले सेफ। मैंने अपनी लाइफ में कभी सेफ प्ले नहीं किया है, तो मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन टू गाइड यू। मेरी वाइफ इतना ज्यादा परेशान रहती है मेरे अनसेफ प्ले से कि सर कमेंट कर रहे हैं। सो फॉर प्लेइंग सेफ, समवन हु वांट्स टू प्ले सेफ, sailing job is perfect. As a chief engineer, keep sailing as long as you can. And उसके अलावा कोई एडवाइस नहीं। मैं अपना ही खराब खराब एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने एक डिवीजन में डैबल करना चालू किया था 15-16 मंथ्स अगो। आई स्टार्ट, एक रियल एस्टेट कंपनी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मेरी एंट्री रियल एस्टेट में हो गई थी विथ नो एक्सपीरियंस ऑफ रियल एस्टेट 15 मंथ्स अगो। एट करेंट माई कंपनी मैनेजेस 10,000 crore इन एसेट राइट नाउ। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आई शुड बी कॉल्ड बिलियनियर। एक आदमी समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इसको मानता नहीं हूँ, ये फर्जी हो जाएगा। मेरे हिसाब से बिलियनियर तब बनूंगा जब मैं $1 बिलियन मेरे बैंक में होगा। अभी नहीं है। बट एसेट अंडर मैनेजमेंट इज मोर देन $1 बिलियन राइट नाउ। एंड उससे भी मैंने बहुत रिस्क लिया, फाइनेंशियल रिस्क बहुत लिया, आज की डेट में भी लेता हूँ। इतना सोचता ही नहीं हूँ। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मेरी इस समय। और इतना सोचता ही नहीं हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होता है अपनी लाइफ में। आप जब रखते हो तो सारे एंटरप्रेन्योर वही रिस्क लेते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग विथ मी। उनकी वेल्थ काफी बढ़ गई है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। एंड अभी भी पहली बेट मैं ही लेता हूँ हमेशा, जस्ट बिकॉज। एंड कई लोग बोलते हैं कि, काफी बड़ी बड़ी कंपनी वाले बोलते हैं कि यार बहुत लकी था मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई हैव गॉन थ्रू हेल इन लास्ट 15 मंथ हेल्थ वाइज भी, बट स्टिल वी आर गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स एट एवरी डे। सो दैट हैज बिन, तो इतना नहीं सोचना चाहिए। सो दैट इज समथिंग दैट एनी वन हु वांट्स टू डू बिग हैज टू टेक अ रिस्क। पहली चीज है कि धंधा चालू करना पड़ेगा भाई, और जो कर रहे हो उनको सपोर्ट करो। किस तरीके से कर सकते हो आप? यू जस्ट क्रिएट योर कल्ट एंड सपोर्ट योर ओन पीपल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो वी शुड सपोर्ट अमित सर विद बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज।
and people like Amit sir who are entrepreneur, क्योंकि एज ए सेलर इतना तो मिनिमम कर ही सकते हैं. वी टेक अ सेफ बेट. एंड गूगल का एक आईपीओ का नोट है, वो मैं सबको शेयर कर दूंगा कभी. तो बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं अपनी कंपनी में. अ, कि अगर कंपनी बनानी है गूगल जैसी, तो उनका डॉक्यूमेंट ही फॉलो कर लेते हैं. तो उसमें भी एक चीज लिखी है कि वी विल टेक बेट्स, प्रो नॉट थिंकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म गेन. चाबी. ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. अब नेक्स्ट संडे मिलते हैं, कोई और टॉपिक रहेगा. अमित सर का नंबर हम चैट में भी दे सकते हैं, पर एवरीवन हैज माय नंबर, तो अगर किसी को अमित सर का नंबर चाहिए तो दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अमित सर. हम लोग कनेक्ट कर देंगे. कुछ सुशांत हमारी टीम में टच होता है, किसी से भी आप कनेक्ट करेंगे तो अमित सर का नंबर मिल जाएगा, सबके पास है. तो आप डायरेक्टली उनसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं अबाउट क्यू फोकस.